Hello, students. Today we are taking a chapter from our English textbook, Moments. Chapter 6, Weathering the Storm in Ersama. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? On October 27, 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village. What is a block headquarter? Block headquarter is like the panchayats of different villages coming together, where a representative of each village, they have an office there. It's like a Zilla Parishad we have in our city. In the same way, the block headquarters is a civic department, and Prashant had gone there for some work. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters in Ersama, a small town in coastal Orissa, some 8 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters swirled into his friend's house, neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew when the crashing of tree that had gone uprooted and fallen on their house. Sometime in the middle of the night, damaging its roofs and wall. The crashed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animals' carcasses and human corpses floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. For the next 2 days, Prashant
sat huddled with his friend's family in the open of the roof. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwaters slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay. But the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. He equipped himself with a long sturdy stick and then started his 18-kilometer expedition back to his village through the Solan flood waters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. At places, it was waist deep and progress was slow. At several points, he lost the road and had to swim. After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there was only remnants of its roof. Some of their belongings were caught mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, weak with hunger. She rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long for given him up for dead. Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2005 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts,
but they were too few to go around such a tumult of people. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time, the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie on the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through. And after that, the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and materials for the shelter. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the woman to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children, he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own plan. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of grief. तो ये कहानी एक प्रशांत नाम के युवक की है जो केवल 19 साल का लड़का है, ओडिशा में रहता है। ओडिशा में किसी गांव में रहता है, लेकिन 27 अक्टूबर 1999 को वह अपने किसी दोस्त के यहाँ गया था।
उसका दोस्त एक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स एरसामा नाम का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर रहा करता था। तो जब प्रशांत अपने दोस्त के यहाँ पर था तो अचानक से काले घने, बड़े बड़े काले घने बादल उमड़ आए और इस बादल ने तूफ़ान का रूप ले लिया। ये तूफ़ान 27 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के कोस्ट को स्ट्राइक हुआ था और इसकी जो हवा की जो गति थी वो 370 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ हवा चल रही थी। 350 किलोमीटर पर आवर तेज़ हवा से चल रही थी और सभी तरफ अंधेरा छा गया था। हवा इतने ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, इतने ज़ोर के बारिश हो रही थी कि बड़े बड़े पेड़ जो कई सदियों से पेड़ खड़े थे वो उखड़ गए, वो गिर गए। प्रशांत जिस घर में शरण लिया था अपने दोस्त के यहाँ, वह एक पक्का मकान था और आसपास के जो कच्चे घर थे वह टूटने लगे, ढहने लगे। लेकिन एक बुरी घटना हुई। प्रशांत जिस घर में ठहरा था वहाँ के आसपास के जो पेड़ थे उस मकान पे इतने ज़ोर से गिरे कि ऊपर का जो रूफ़ है, सीलिंग है, वो टूटने लगा। फिर बारिश इतनी ज़ोर से आ रही थी, तूफ़ान इतना ज़ोर से आ रहा था कि धीरे धीरे सभी मकानों में पानी भरने लगा। तो प्रशांत और इस मकान के रहवासी जो रहने वाले प्रशांत के दोस्त, उसका परिवार, उन्होंने छत पर जाकर शरण ले ली। ठंडी हवा चल रही थी, ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन क्या करे। सुबह जब हुआ तो क्या देखे कि सब तरफ पानी 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 फैला हुआ था। बहुत सारे बड़े मकान डूबे, पानी में डूब गए थे। ये तो अच्छा था कि इस मकान के आसपास कुछ नारियल के पेड़ गिरे थे, उसमें हरे हरे नारियल थे। तो इस नारियल को तोड़कर इन्होंने अपना पेट भरना चालू किया। 2 दिन बीत गए। प्रशांत यही इसी मकान में फंसा हुआ था। फिर बारिश थमने के बाद प्रशांत ने सोचा कि चलो मैं अपने घर जाके देखता हूँ। उसे डर था कि कहीं वो वापस से उसके घर में कोई ट्रेजेडी ना हो गई हो। तो वह एक बड़ा सा डंडा लेकर अपने साथ में अपने घर की ओर जाने का निर्णय बनाया। प्रशांत के मित्र के परिवार वालों ने प्रशांत को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत अपने निर्णय पर अटल था और वह अपने हाथ में डंडा लिए अपने गांव की तरफ, जो कि 18 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वह चल दिया। पानी कमर तक का भरा हुआ था, कई कई जगह पर कमर तक का भरा हुआ था, कई और गहरा था। प्रशांत इस डंडे की मदद से चला जा रहा था। कई बार तो वो अपना रास्ता भटक गया था। सड़क छोड़कर वो मैदानों में चला गया जहाँ पर चीखल था, लेकिन जैसे तैसे उसने वापस से अपना रास्ता ढूंढा। कुछ दूर जाने के बाद उसे उसके गांव के 2 लोग और मिल गए। तो उन्होंने निर्णय बनाया कि ये साथ में चलेंगे और इन्होंने एक ग्रुप बनाकर साथ में अपने गांव की तरफ चलना चालू किया। जैसे जैसे ये अपने गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हालात बद से बदतर होते जा रही थी। आसपास में उनके सड़े शरीर, लाश पानी में टहल रहे थे। इंसानों के लाश थे, आदमी, औरत, बच्चे, कभी कभी कुत्तों की लाश, बकरी, जानवरों के लाश, ये सब पानी से बहते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। प्रशांत ने और उसके जो दोस्त थे, जो साथी थे, उन्होंने इन लाशों को बाजू करते 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 वो अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार प्रशांत अपने गांव कालीकूड़ा पहुंच ही गया। लेकिन जब वो अपना गांव पहुंचता है तो दृश्य देखकर उसका दिल सहम सा जाता है। जहाँ पर उसका मकान हुआ करता था वहाँ पर केवल उसके घर का छत खड़ा था और पेड़ों के टहनियों में उसके घर का कुछ जो सामग्री थी उस टहनियों में लटके हुए थे। प्रशांत सोचा, अब मैं क्या करूं?
तो सोचा कि गांव में जहाँ पर रेड क्रॉस शेल्टर है वहाँ जाकर वो अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो वह वहाँ पर चला गया। तो सबसे पहले उसने अपनी आंटी की जो ग्रैंड मदर है, मटर्नल ग्रैंड मदर को देखा, मौसी मौसी नानी को देखा। और उसकी मौसी नानी बेचारी भूखी थी, लेकिन फिर भी वो भागते हुए अपने इस बच्चे की तरफ आई और सोचा ये तो चमत्कार हो गया। हर किसी को लगा था कि प्रशांत नहीं बचा। बहुत जल्दी से उसके परिवार वाले, आसपास के लोग आए प्रशांत को, और प्रशांत को देखकर बड़े खुश हो गए। तो फिर प्रशांत ने देखा यहाँ, हाँ, उसका भाई भी था, उसकी बहन भी थी, अंकल आंटी सब लोग यहीं पर थे। अगली सुबह तक का प्रशांत ने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं सब के हाल बहुत बुरे थे। लगभग 2,500 लोग इस शेल्टर में थे और इनके पास खाने के लिए बहुत कम था। गांव के कम से कम 86 लोग ने अपनी जान गंवा दी थी। गांव में 96 हाउसेस थे। सभी के सभी हाउसेस, सभी के सभी मकान पानी में ढह गए थे। और 4 दिन ये लोग शेल्टर में थे, लेकिन इनके पास खाने के लिए केवल कोकोनट्स थे, हरे हरे नारियल थे, कच्चे नारियल। इसके ऊपर इतने सारे लोगों को सर्वाइव होना बड़ा मुश्किल था। तो प्रशांत केवल 19 साल का लड़का था। उसने सोचा कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई लीडर का काम नहीं करता, तो क्यों ना वही खुद लीडर बन जाए। तो वो अपने गांव के कुछ युवकों को और बुज़ुर्गों को, बड़े बड़े लोगों को साथ में प्रेशराइज़ करता है। बोले चलो हम जो व्यापारी है उसके पास जाकर उससे चावल या अनाज मांग कर लाते हैं। इससे पहले भी लोग गए थे व्यापारी के पास अनाज मांगने के लिए, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया था। लेकिन अब प्रशांत ने और यहाँ के कुछ युवक लोगों ने मिलकर उस व्यापारी के ऊपर प्रेशर डाला और आखिरकार व्यापारी ने उनको कुछ बोरी चावल देने से चावल दे दिया। और ये चावल लेकर वो शेल्टर वापस आ गए। किसी को ये परवाह नहीं था कि ये चावल जो है सड़ रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने कुछ पेड़ के टहनियाँ इकट्ठा की। बड़े मुश्किल से एक धीमी आंच वाला आग सिलगाया और बर्तन लेके चावल पकाया। पहली बार 4 दिनों में पहली बार यहाँ के लोगों ने भोजन किया। अब प्रशांत का नया टास्क था कि एक वॉलंटियर बनाना है और आसपास का जो इलाका है, गंदगी जो है इसको साफ़ करनी है। जो लाशें यहाँ पर पड़ी है उसको हटाना है। लोगों को जो जख्म हुआ है, उनके हाथों में हाथ फ्रैक्चर हुए, पैर फ्रैक्चर हुए, उनको ठीक करना है। 5वें दिन पे यहाँ से एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा और उसने शेल्टर के ऊपर कुछ अनाज के जो पार्सल्स होते हैं वो ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर वापस ही नहीं आया। फिर प्रशांत ने क्या किया, यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया और बर्तन लिया, जो प्लेट्स थे, और कहा, सब बच्चों से कहा कि आप ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाओ और पेट के ऊपर ये प्लेट्स, बर्तन को रख लो। इससे क्या संदेश देना था कि हम सब भूखे हैं, हमें अनाज की ज़रूरत है। और ये मैसेज इस हेलीकॉप्टर ने देख लिया। तो हेलीकॉप्टर फिर से आया और अनाज लेकर आया, और काफ़ी अनाज इस जो अनाज और बेसिक नीड्स है इस कैंप के ऊपर, शेल्टर के ऊपर उन्होंने गिरा दिया। प्रशांत ने क्या देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे थे वो, उनके माता पिता इस तूफ़ान में, इस सैलाब में मर गए थे। तो ये बेचारे अनाथ हो गए थे। तो इन अनाथ बच्चों को उसने इकट्ठा किया, एक शेल्टर होम बनाया और यहाँ पर इनको इकट्ठा कर लिया। और यहाँ की औरतों को उसने ये जिम्मेदारी दी कि ये बच्चों का ख्याल शेल्टर होम में औरत लोग करेंगी, और आदमियों का काम था जाके अनाज लाना और ऐसे मटेरियल लाना जो शेल्टर में काम में आए। दिन से हफ्ते हो गए, हफ्ते बीतने लगे। प्रशांत ने जल्दी से ऐसे जो
प्रशांत ने क्या देखा कि यहाँ के जो औरत और जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में धंसते जा रहे थे। ये बात अच्छा नहीं था। तो उसने परसुएट किया कि आप जो औरतें हैं उनको परसुएट किया कि पास में एक एनजीओ था, वहाँ पर एनजीओ में उनको काम मिल रहा था, आप काम करोगे तो आपको अनाज मिलेगा। तो यहाँ पर इन औरतों को काम करने के लिए उसने परसुएट किया और बच्चों को क्रिकेट खेलने में लगाया। प्रशांत को भी क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था, तो बच्चों को क्रिकेट खेलने में उसने व्यस्त कर दिया। तो धीरे धीरे देखा कि जो लोग थे वह अपना दुख अभी भूलने लगे थे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का प्लान था, गवर्नमेंट ने एक इनिशियल ऐसा प्लान बनाया कि जो बच्चे हैं, जो अनाथ हो गए बच्चे, इनको अनाथ आश्रम में डाल देंगे और जो विधवा थे उनको विधवा आश्रम में डालेंगे। लेकिन प्रशांत को लगा कि प्रशांत और गांव वालों को लगा कि ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि क्यों ना गांव के लोग ही इन बच्चों को गोद ले लें, क्योंकि अगर बच्चे अनाथ आश्रम चले जाएंगे तो यहाँ पे इनको प्यार नहीं मिलेगा। ये बगैर प्यार के बेचारे बच्चे यहाँ पर बड़े होंगे और ये अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। और वैसे ही जो विधवा लोग थे, विधवाओं को भी अगर इस अनाथ आश्रम में, जहाँ विधवा आश्रम में अगर डालेंगे तो उनका जो आत्मा सम्मान है उसको काफ़ी ठेस पहुँचेगा। तो प्रशांत ने सोचा कि इन्हें कम्युनिटीज़ में, फैमिली में ही, जहाँ पे जिन बच्चों के पास, जिस विडोज़ के पास में जो विधवा है उनके पास अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे इन विधवाओं को दे देंगे। और जो बच्चे जिसके पास अडल्ट केयर नहीं है, ऐसे बच्चे इन विधवाओं को दे देंगे कि विधवा को भी एक परिवार मिल जाएगा, बच्चे को भी एक माँ मिल जाएगी। इस प्रकार से ये अपने ही गांव में बच्चे पलेंगे और विधवा लोगों को भी इतना बुरा नहीं लगेगा। तो अगले 6 महीने में, सुपर साइक्लोन के बाद में, तो प्रशांत ने क्या पाया कि उसको जो जितना दुख लगना था उसको उतना दुख नहीं लगा। क्यों दुख? प्रशांत दुखी क्यों नहीं था? क्योंकि उसने दूसरे के दुख में अपने आप को शामिल कर लिया, अपने आप को व्यस्त कर लिया। वो इतना बिजी हो गया था कि उसे दुख लगने का समय ही नहीं मिलता। गांव के लोग हर वक्त प्रशांत को देखने के लिए तत्पर रहते थे। गांव के जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, विधवा लोग हैं, ये प्रशांत उनके लिए एक हीरो बनकर उभरा। ऐसे इसमें तो हम इस चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे। उसका डिफ़िकल्ट वर्ड से मेंसिंग मतलब बहुत ही डेंजरस एंड हार्मफुल। इनसेसेंट मीन्स बगैर रुके लगातार ज़ोरदार बारिश होना, अनसीजिंग कंटिन्यूअल रेनफॉल। स्वर्ल्ड मतलब मूव्ड और फ्लोट अलॉन्ग विद द वर्लिंग मोशन, ऐसे चक्राव बन के जो घूमना, पानी खासकर स्वर्ल्ड मतलब जो पानी जो चक्राव बन के घूमता है उसको स्वर्ल्ड बोलते हैं। कारकासेस मतलब लाशें, सड़ी गली लाशें, इंसानों की हो या जानवरों की, उसको कारकास बोलते हैं। बिरीव्ड बोलते हैं लॉस्ट अ क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड बिकॉज ऑफ डेथ। रिमेनेंट्स बचे कुचे। मोटली डेस्परेट, ट्यूमल्ट अप्रोर और डिसऑर्डरली क्राउड। तो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि जो रियल हीरोज़ होते हैं वह सिचुएशन को अपने काबू में करते हैं। रियल हीरोज़ हर वक्त वायलेंट होना, किसी का विरोध करना, ये रियल हीरोज़ हर वक्त ऐसे नहीं होते हैं। हीरोज़ वह होते हैं जो सिचुएशन को भांपते हैं और उसके अनुसार प्लान बनाकर सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत केवल एक 19 साल का नवयुवक था। इस गांव में और भी बड़े बुजुर्ग लोग थे, लेकिन प्रशांत ने पहल की थी अपने गांव के लोगों के लिए भोजन का आयोजन करना। किस प्रकार से उसने हेलीकॉप्टर को आकर्षित किया, संदेश दिया कि हम लोग भूखे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। रेड क्रॉस का शेल्टर तो था, लेकिन शेल्टर में क्या थे? केवल नारियल पानी से वो पेट भर रहे थे। किस प्रकार से प्रशांत ने अपने गांव के जो लोगों को इकट्ठा किया और उस व्यापारी के पास जाकर उससे अनाज देने के लिए मजबूर किया। अनाज लेकर आए,
अंगार बनाई, खाना पकाया। प्रशांत ने फिर देखा कि जो लोग विधवा हो गए थे, जो औरतें विधवा हुई थी, जो बच्चे अनाथ हुए थे, ये डिप्रेशन में जा रहे थे। इनको किस प्रकार से डिप्रेशन से निकालना। इनको औरतों को काम पे भेज दिया, बच्चों को खेलने में लगा दिया। इस प्रकार से उनका जो लोनलीनेस है उसको उसने दूर करवाया। फिर उसने देखा है कि जो गवर्नमेंट का जो प्लान था, बच्चों को अनाथ आश्रम में ले जाना, विधवाओं को विधवा आश्रम में ले जाना, ये ठीक नहीं होगा। उसके उसके अलावा भी उसने अपना खुद का प्लान बनाया। गांव में ही बच्चों को सेटल किया। जिन विधवाओं के पास में बच्चे नहीं थे उनको, और जिन बच्चों के पास माता पिता नहीं था, उनको इकट्ठा कर लिया, एक परिवार बना दिया। इस प्रकार से प्रशांत अपने गांव वालों के लिए हीरो बन गया।